السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس رضی اللہ عنہ ان ابا بکر رضی اللہ عنہ اتى وله الذي فرض رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، رواه البخاری۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی۔ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، رب زدني علما۔ سامعین کرام، ناظرین اعظام، جو ہمیں ایم ایس فیضی یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں، ہم آپ حضرات کی خدمت میں درس حدیث کو لے کر کے حاضر ہیں۔ جو حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے اس کا ترجمہ اس طریقے سے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے لیے فرض زکوٰۃ کا حکم لکھ کر دیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی تھی۔ اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ زکوٰۃ کے در سے جدا جدا مال کو یکجا اور یکجا مال کو زکوٰۃ کے در سے علیحدہ علیحدہ نہ کیا جائے۔ اسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر روایت کیا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ باب لا یجمع بین مفترق ولا یفرق بین مجتمع کے اندر یہ حدیث آپ کو مل جائے گی۔ حدیث بھی اور اس کا ترجمہ بھی آپ حضرات کے سامنے رکھا گیا ہے۔ اس حدیث رسول سے دو اہم مسائل ثابت ہوتے ہیں، جن میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے کے لیے ہیلا نہیں کرنا چاہیے، بہانہ نہیں کرنا چاہیے، اور دوسرا مسئلہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زکوٰۃ دیتے وقت زکوٰۃ دینے والا الگ الگ مال کو اکٹھا کر کے زکوٰۃ نہ دے اور اکٹھا مال کو الگ الگ کر کے زکوٰۃ نہ دے۔ یہ دو اہم مسائل اس حدیث رسول سے ثابت ہوتے ہیں۔ پھر میں ایک مرتبہ حضرات کے سامنے یہ مسائل دہرا دینا چاہتے ہیں۔ پہلا مسئلہ جو کہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ دیتے وقت یا زکوٰۃ دینے کے لیے ہیلا نہیں کرنا چاہیے، بہانہ نہیں کرنا چاہیے، اور دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ زکوٰۃ دیتے وقت زکوٰۃ دینے والا الگ الگ مال کو اکٹھا کر کے زکوٰۃ نہ دے اور اکٹھا مال کو الگ الگ کر کے زکوٰۃ نہ دے۔ اسی طریقے سے یہ تو زکوٰۃ دینے والوں کے لیے یہ طریقہ کار ہے، زکوٰۃ وصول کرنے والے کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار بتایا ہے۔ وہ کیا ہے کہ مشترک مال کو جو ہے، شاملی مال کو وہ الگ الگ کر کے زکوٰۃ نہ دے۔ آئیے ہم مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، ہم بھی دعا کرتے ہیں اور آپ بھی دعا کریں کہ ہم جو آپ حضرات کے سامنے مثال بیان کریں گے انشاءاللہ وہ ہمیں اور آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ حدیث کو الگ الگ مال کو اکٹھا کر کے زکوٰۃ دینے کا طریقہ سمجھتے ہیں۔ مان کے چلیے تین الگ الگ جگہ میں تین الگ الگ آدمی کے پاس بکری ہے، مثال کے طور پر الگ الگ مال کو اکٹھا کر کے زکوٰۃ دینے کا کیا طریقہ ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، اس کو سمجھتے ہیں مثال کے ذریعے سے۔ تین الگ الگ آدمی کے پاس، مثال کے طور پر زید کے پاس، عمر کے پاس، بکر کے پاس، یہ تین الگ الگ آدمی ہیں اور ان تینوں آدمی کے پاس 40 کر کے بکریاں ہیں۔ بکریوں کے زکوٰۃ دینے کا طریقہ اور رول اور نیم اور قاعدہ جو حدیث رسول کے اندر بیان کیا گیا ہے، اس کو میں آپ حضرات کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں تاکہ یہ باتیں سمجھنے میں آسانی ہو۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کے اندر یہ بتلایا گیا ہے جس کے پاس 40 بکریاں ہوں اس کو ایک زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا۔ 40 سے کم بکریاں جس کے پاس ہے اس کو زکوٰۃ دینا واجب اور ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ خوشی سے دے دیتا ہے، 40 سے کم ہے اس کے باوجود بھی وہ خوشی سے دے دیتا ہے تو اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے اور دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں
बकरियों के ऊपर कब ज़कात फर्ज होता है, वाजिब होता है? जब 40 के निसाब को पहुंच जाए। जिसके पास 40 बकरियां हो जाए उसको एक ज़कात में अदा करना वाजिब और जरूरी है। 40 से लेकर के 120 तक में एक ही बकरी देना होगा। 40 से लेकर के 120 तक, यानी 1 से लेकर के 40 तक और 40 से लेकर के 120 तक अगर किसी के पास 120 बकरियां हैं तो उसको एक ही बकरी ज़कात में अदा करना होगा। लेकिन जैसे ही 120 बकरियों से ज्यादा उसकी बकरियों की तादाद बढ़ जाए, संख्या बढ़ जाए, तो 200 तक में 2 बकरियां ज़कात में अदा करना होगा। 1 से लेकर के 39 तक अगर किसी के पास बकरी है तो उसमें ज़कात नहीं है। अगर अपनी खुशी से दे तो कोई हरज नहीं है और लेने में भी कोई हरज नहीं है। लेकिन जैसे ही 40 बकरी हो जाए उसमें ज़कात देना वाजिब और जरूरी है। 40 से लेकर के 120 तक किसी के पास 41 है, 42 है, 45 है, इस तरीके से 120 बकरियां जिसके पास है तो इसके ऊपर भी एक ही बकरी ज़कात में देना होगा। लेकिन जैसे ही 120 से ज्यादा हो जाए, यानी 121 से लेकर के 200 तक में 2 बकरी ज़कात में अदा करना वाजिब और जरूरी है। और जैसे ही 200 से ज्यादा हो जाए, यानी 201 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, किसी के पास 201 बकरी है, 2 बकरी है, 3 बकरी है, तो 201 से जैसे ही ज्यादा हो जाए तो 300 तक में 3 बकरी देना होगा, ज़कात में देना होगा, वाजिब और जरूरी है। लेकिन 300 से ज्यादा हो जाए, 300 से ज्यादा हो जाए तो नबी अलैहिस्सलाम की हदीस ये बता रही है कि हर 100 में 1 बकरी की ज़कात में देना होगा। लेकिन ये कब? जब 300 से ज्यादा हो जाए। 301 बकरी है, किसी के पास 2 है, 3 है, तब नबी अलैहिस्सलाम का ये फॉर्मूला है, ये कायदा है, ये नियम है, ये रूल है कि हर 100 में 1 बकरी ज़कात में देना वाजिब और जरूरी है। ये फॉर्मूला, ये नियम, ये कानून, ये कायदा आप ज़हन में रखें, दिमाग में रखें और इन मिसालों को समझने की कोशिश करें। पहली मिसाल क्या है कि अलग अलग 3 आदमी के पास बकरियां हैं। एक आदमी के पास, जैद के पास 40 बकरियां हैं, अम्र के पास 40 बकरियां हैं, बकर के पास 40 बकरियां हैं। तो तीनों आदमी के पास 40-40 करके अलग अलग, ये तो अलग अलग। अगर ज़कात के दर से, कि हमको ज़कात का डर क्या है कि हम इनको इकट्ठा कर देंगे, एक जगह जमा करके देंगे तो हमको कम बकरी ज़कात में देना होगा। ये लोग होशियारी करते हैं, चालाकी करते हैं। तो चालाकी करके, होशियारी करके ज़ैद की 40 बकरियों को मिला लिया, बकर के 40 बकरियों को मिला लिया और अमर के 40 बकरियों को मिला लिया। कुल मिला करके 120 बकरियां हो गई। तो जैसा कि अभी हमने बयान किया फॉर्मूला और नियम और कायदा कि 40 से लेकर के 120 में एक ही बकरी है। हालांकि अलग अलग आदमी के पास है, बिल्कुल अलग अलग है, और अलग अलग होने के एतबार से ज़ैद के पास जो 40 बकरियां हैं उसमें 1 ज़कात में लगेगा, बकर के पास जो 40 बकरियां हैं उसमें 1 ज़कात में लगेगा, और अमर के पास जो 40 बकरियां हैं उसमें 1 ज़कात में। इस तरीके से देखा जाए तो 3 बकरियां ज़कात में देना पड़ेगा, जो कि वाजिब और जरूरी है। तो आदमी होशियारी करता है और चालाकी करता है, और चालाकी और होशियारी ये है कि हम तीनों आदमी के 40-40 बकरियों को मिला देंगे, कुल मिला करके जो है 120 हो जाएगा, तो उसमें हमको एक ही बकरी ज़कात में अदा करना होगा।
तो ऐसी होशियारी और ऐसी चालाकी करना नबी अलैहिस्सलाम की हदीस के हिसाब से जो है नाजायज है, बल्कि हराम है। ऐसा हमें और आपको नहीं करना चाहिए। तो अलग अलग माल को इकट्ठा करके एक जगह जमा करके हम जो है ज़कात हमारा कम लगेगा, हमको ज़कात कम देना पड़ेगा। हमको 3 बकरी जहाँ लगती है वहाँ हम 1 बकरी दे सकते हैं और देना हम चाहते हैं। तो इस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम ने मना किया है। तो ये मिसाल थी और एग्जाम्पल था कि अलग अलग बकरियों को जो है अलग अलग माल को इकट्ठा करके ज़कात नहीं दिया जा सकता है और ये मना है। अब मिसाल, दूसरी मिसाल है कि मुश्तरका माल को, शामिली माल को अलग अलग करके ज़कात दिया जाए, ये भी मना है। शामिली माल क्या है? मिसाल के तौर पर 2 आदमी का मुश्तरका माल है, 2 आदमी का शामिली में है 240 बकरी है। 2 आदमी का, ज़ैद और अमर का जो है दोनों का मिला करके 240 बकरियां हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम के नियम के हिसाब से उसके अंदर 3 बकरियां ज़कात में देना पड़ेगा। लेकिन आदमी होशियारी क्या करता है और चालाकी कि हम अगर इसको अलग अलग करते हैं, कर देते हैं, ज़ैद ने अलग कर दिया 240 में से 120 अलग कर दिया ज़ैद ने, और बकर ने 120 अलग कर दिया। तो इस तरीके से 120 में 1 बकरी है और दूसरे 120 में 1 बकरी है। जहाँ 3 बकरियां ज़कात में देना वाजिब था, वहाँ अलग अलग करके 120 अलग कर दिया, 120 अलग कर दिया, अलग अलग करके जो है ना 120 में 1 बकरी दिया, दूसरे 120 में 1 बकरी दिया। यानी कुल मिला करके जो है 2 ही बकरियां उन्होंने ज़कात में निकाला। होशियारी क्या क्या उन्होंने, चालाकी क्या क्या, 1 बकरी को उन्होंने ज़कात देने से बचा लिया। ऐसा भी नबी अलैहिस्सलाम ने करने से मना किया है। ये हो गया ज़कात देने वाला होशियारी करता है, चालाकी करता है कि हम जो है अलग अलग माल को मिला करके देंगे तो कम देना पड़ेगा, और जो है जो मिला हुआ माल है उसको अलग अलग करके देंगे तो ये हमको बकरी कम देना पड़ेगा। ये दोनों तरीका का नबी अलैहिस्सलाम ने मना किया है ताकि ये नाजायज है। ये ज़कात देने वाला आदमी ऐसा करता है। अब ज़कात देने वाला आदमी, ज़कात वसूल करने वाला आदमी जो ज़कात लेने के लिए जाता है, उसके लिए भी मना किया है। उसके लिए भी नबी अलैहिस्सलाम ने मना किया है। मिसाल के तौर पर 2 आदमी की 80 बकरियां हैं। एक आदमी ज़कात देने के लिए गया है, ज़कात वसूल करने के लिए, कलेक्शन करने के लिए गया है, और 2 आदमी, ऐसे 2 आदमी के पास गया है जिन 2 आदमियों का शामिल तौर पर, इज्तिमाई तौर पर 80 बकरियां हैं। वो लोगों का, उन दोनों आदमियों का शामिल तौर पर 80 बकरियां हैं। तो उसमें एक ज़कात होगी, क्योंकि 40 से लेकर के 120 में 1 ही बकरी है और यहाँ 80 है, तो 1 ही बकरी ज़कात में है। लेकिन ज़कात लेने वाला होशियारी क्या करता है और चालाकी क्या करता है कि उन दोनों आदमी के 40 को अलग कर देता है। यानी 80 बकरी को जो है, एक को 40 कर दिया, एक को 40 कर दिया, 2 हिस्सों में उसको बांट दिया, और एक आदमी के पास 1 बकरी दे दिया और दूसरे आदमी के पास 1 और बकरी दे दिया। यानी 40 में एक एक बकरी करके 2 कुल मिला करके ज़कात लेने वाले ने और ज़कात वसूल करने वाले ने जो है अपनी होशियारी और चालाकी को दिखाते हुए उन दोनों आदमियों से जो है 2 बकरी ले लिया, जो कि हदीस के हिसाब से 1 ही बकरी उनके ऊपर जो है ज़कात में वाजिब है। तो ऐसा करना भी नबी अलैहिस्सलाम ने मना किया है। यानी ज़कात देने वाले को भी होशियारी और चालाकी करने से मना किया है, और ज़कात लेने वाले और वसूल करने वाले को भी होशियारी और चालाकी करने से मना किया है। तो मैंने अपने अंदाज में जो बुखारी शरीफ की हदीस है, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस, अपने अंदाज में मैंने मिसाल के जरिए से और एग्जाम्पल के जरिए से मैंने आप हज़रात को समझाने की कोशिश किया है। मैं अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। आखिर में अल्लाह तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको और सारे मुसलमानों को इस हदीस रसूल के ऊपर अमल करते हुए ज़कात देने और ज़कात लेने की तौफीक इनायत फरमाए। और इसी तरीके से ज़कात देने वाला भी इस तरीके की कोई होशियारी ना करे, और ज़कात लेने वाला भी इस तरीके का कोई होशियारी ना करे। इस तरह करने से जो है नुकसान हो जाएगा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।